بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب میران پور نامی بستی کے بازار رات گئے تک چراغوں کی روشنی سے جگمگاتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کے کردار کو دولت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ اسی بازار کے درمیان ایک نوجوان تاجر رہتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ سلیمان عمر میں زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس کی ایمانداری پورے شہر میں مشہور تھی۔ وہ خشک میوہ اور اناج فروخت کرتا تھا لیکن لوگ اس کی دکان پر صرف سامان لینے نہیں آتے تھے، وہ اس پر بھروسہ کرنے آتے تھے۔ سلیمان ہمیشہ ایمانداری سے سامان دیتا، خراب چیز کبھی اچھے مال میں شامل نہ کرتا، اور اگر کسی غریب کے پاس پیسے کم ہوتے تو خاموشی سے باقی رقم معاف کر دیتا۔ اسی بازار کے دوسرے کنارے ایک اور دکاندار تھا، فہیم۔ اس کی دکان بڑی تھی، کپڑے قیمتی تھے، زبان میٹھی تھی، مگر دل اندر سے حسد سے بھرا ہوا تھا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ لوگ دولت کے باوجود اس کی عزت نہیں کرتے تھے، جبکہ سلیمان جیسا سادہ لڑکا سب کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ ہر شام جب بازار بند ہوتا تو لوگ سلیمان کی تعریفیں کرتے، اوپر والا ایسے دیانتدار لوگ کم پیدا کرتا ہے، اور یہی جملے فہیم کے سینے میں آگ لگا دیتے۔ ایک رات فہیم اپنی دکان میں اکیلا بیٹھا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال جنم لے رہا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا اور آہستہ سے بولا، اگر لوگ اس کی سچائی کے دیوانے ہیں تو میں اس کی یہی سچائی چھین لوں گا۔ اگلے دن صبح سویرے اس نے اپنے ایک خفیہ آدمی سے ملاقات کی اور اسے ایک بوری پکڑاتے ہوئے کہا، آج رات یہ خراب اور نمی والا اناج کسی طرح سلیمان کے گودام میں ڈال دو، پھر دیکھنا کل پورا شہر اس کی عزت خاک میں ملے گا۔ دوسری طرف سلیمان اپنے گودام میں بیٹھا حساب لکھ رہا تھا۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ رات گہری ہوئی، بازار سنسان ہو گیا، اور بارش کے شور میں ایک سایہ خاموشی سے سلیمان کے گودام کی دیوار پھلانگ گیا۔ آدھی رات کے بعد میران پور کی گلیاں مکمل خاموش ہو گئی تھیں، صرف بارش کے قطروں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو پرانی چھتوں پر مسلسل برس رہے تھے۔ اسی اندھیرے میں وہ نقاب پوش آدمی سلیمان کے گودام کے اندر داخل ہوا اور چپکے سے خراب اناج کی بوریاں اچھے اناج میں ملا کر نکل گیا۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ سلیمان ہمیشہ کی طرح فجر پڑھ کر گودام پہنچ گیا۔ وہ ہر روز کی طرح خود اپنے ہاتھ سے سامان دیکھا کرتا تھا، وجہ یہ تھی کہ اسے ڈر رہتا تھا کہ کہیں کسی گاہک تک ناقص چیز نہ پہنچ جائے۔ جیسے ہی اس نے ایک بوری کھولی، اس کا رنگ بدل گیا۔ اناج میں عجیب سی نمی تھی اور بدبو بھی آ رہی تھی۔ اس نے فوری باقی بوریاں کھولی تو دیکھا کہ کئی بوریوں میں خراب دانے ملے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اس کے دل میں خوف آیا۔ آج بازار میں بہت بڑا سودا ہونے والا تھا، اگر یہ مال فروخت کر دیتا تو اسے کئی گنا فائدہ ہو سکتا تھا اور شاید کسی کو فوری پتہ بھی نہ چلتا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، آ خدا، اگر رزق میں برکت نہ رہے تو دولت کس کام کی۔ اسی وقت اس کا چھوٹا ملازم حارث اندر آیا اور بولا، بھائی لوگ آنے والے ہیں، آج تو بڑا منافع ہوگا۔ مگر سلیمان خاموشی سے خراب بوریاں الگ کرنے لگا۔ حارث حیران رہ گیا، اتنا سارا نقصان؟ اگر آپ یہ فروخت کر بھی دیں تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ سلیمان نے سخت لہجے میں کہا، لوگوں کو شاید خبر نہ ہو مگر اوپر والا تو دیکھ رہا ہے۔ ادھر بازار کے دوسری طرف فہیم اپنی دکان کے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج سلیمان تو لالچ میں آ جائے گا، اب پھر اتنا نقصان اٹھائے گا کہ کبھی سنبھل نہیں پائے گا۔ دوپہر تک پورے بازار میں خبر پہنچ گئی کہ سلیمان نے اپنی دکان بند رکھی ہے اور کئی بوریاں خود ضائع کر دی ہے۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے کہا وہ پاگل ہو گیا ہے، کچھ نے کہا شاید اسے کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ مگر شام کے وقت ایک بوڑھا فقیر اس کی دکان پر آیا اور بولا، بیٹا، نقصان وہ نہیں جو مال کم کرے، اصل نقصان وہ ہے جو انسان کا ضمیر مار دے۔ یہ سن کر سلیمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ فہیم ابھی رکا نہیں ہے۔ اس کی اصل چال تواب شروع ہونے والی تھی۔ اسی رات فہیم اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کی پہلی سازش ناکام ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اتنا بڑا نقصان برداشت کر لے مگر دھوکہ نہ دے۔ اس نے غصے میں پانی کا گلاس دیوار پر دے مارا اور اپنے آدمی رفیق کو بولا، اگر سلیمان کی دیانتداری نہیں ٹوٹتی تو ہمیں اس کی عزت توڑنی ہوگی۔
अगले दिन सुबह बाजार में अजीब अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गईं। कोई कहता सुलेमान रात के वक्त खुफिया सौदे करता है, कोई कहता वो गरीबों को मुफ्त सामान देकर लोगों की हमदर्दियां खरीदता है। शुरू में लोगों ने इन बातों पर ध्यान न दिया, मगर फहीम बड़ी चालाकी से हर महफिल में यही बातें दोहराने लगा। चंद दिन बाद इसने शहर के कोतवाल के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे डर है कि सुलेमान बस्ती के लोगों को धोखा दे रहा है। शायद इसके गोदाम में चोरी का माल भी पाया जाता है। कोतवाल पहले तो खामोश रहा। वजह यह थी कि इसने भी सुलेमान की नेकी के किस्से सुन रखे थे, मगर बार बार एक ही बात सुनकर इसके दिल में भी शक पैदा होने लगा। इसी शाम जब बाजार बंद होने वाला था, अचानक सिपाहियों का एक दस्ता सुलेमान की दुकान पर पहुंच गया। पूरा बाजार हैरत से रुक गया। लोगों ने देखा कि कोतवाल खुद आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, हमें तुम्हारे गोदाम की तलाशी लेनी है। हारिस घबरा गया, मगर सुलेमान ने सुकून से दरवाजा खोला और कहा, अगर मेरा दिल साफ है तो मुझे किसी तलाशी से डर नहीं। सिपाही अंदर दाखिल हुए और हर बोरी हर संदूक खोल कर देखने लगे। बाहर पूरा बाजार जमा था। फहीम वहां खड़ा खामोशी से यह मंजर देख रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चंद लम्हों बाद अचानक एक सिपाही जोर से बोला, ये देखें। सबकी नजरें इसकी तरफ उठ गईं। इसके हाथ में एक छोटा सा मखमली थैला था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसके साथ एक शाही मेहर भी पड़ी थी। ऐसी मेहर जो कुछ दिन पहले शहर के खजाने से गायब हुई थी। बाजार में शोर मच गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हारिस का अर्निंग उड़ गया, जबकि सुलेमान चंद लम्हों तक खामोश खड़ा इस थैले को देखता रहा। वो जानता था कि ये चीज इसके गोदाम में पहले कभी नहीं थी। कोतवाल ने गुस्से से सुलेमान का बाजू पकड़ा और बुलंद आवाज में बोला, शहर के खजाने की मेहर तुम्हारे गोदाम में कैसे आई? बाजार में खड़े लोग सहम गए। चंद लम्हे पहले तक जो लोग सुलेमान की तारीफें करते थे, अब उन्हीं के चेहरों पर शक नजर आ रहा था। हारिस बार बार कह रहा था, ये झूठ है, किसी ने ये चीज यहां रखी है, मगर शोर इतना बढ़ गया था कि किसी ने इसकी बात ना सुनी। फहीम वहां खड़ा ये सब देख रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आ रहा था। सुलेमान ने आहिस्ता से कोतवाल की तरफ देखा और बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं ये मेहर मैंने कभी नहीं देखी। मगर कोतवाल सख्त लहजे में बोला, सच अदालत में साबित करना, और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनते ही पूरे बाजार में खामोशी छा गई। सुलेमान के हाथों में रस्सी बांध दी गई और लोग रास्ता छोड़ते गए। कुछ लोगों की आंखों में अफसोस था, कुछ के दिलों में शक और कुछ खामोश थे। अलिफ सच और झूठ के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो गया था। इसी दौरान बाजार के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत ये सब देख रही थी। इसकी नजरें बार बार फहीम पर जाकर रुक रही थीं, जैसे वो कोई राज जानती हो। रात को सुलेमान को पुरानी हवालात में बंद कर दिया गया। छोटा सा तारीक कमरा, ठंडी दीवारें और बाहर जलती हुई मशल की धीमी रोशनी। हारिस रोते हुए बोला, भाई अब फिक्र ना करें, ऊपर वाला सच्चाई को जरूर जाहिर करेगा। मगर सुलेमान खामोश बैठा रहा। चंद लम्हों बाद इसने आसमान की तरफ देखा जो लोहे की सलाखों के पीछे से बमुश्किल नजर आ रहा था, और धीरे से बोला, इंसान की आजमाइश इस वक्त नहीं होती जब सब उसकी तारीफ करें। असल आजमाइश तब होती है जब वो बेकसूर हो और फिर भी दुनिया इसे मुजरिम समझे। दूसरी तरफ फहीम अपनी दुकान में बैठा खुशी से कह लगा रहा था। इसने अपने आदमी रफीक को सोने की थैली देते हुए कहा, बस कल अदालत में आखिरी वार होगा और फिर मीरानपुर में सिर्फ एक ही नाम बचेगा। मगर इसे यह मालूम नहीं था कि बाजार के कोने में बैठी वो बूढ़ी औरत खामोशी से सब सुन चुकी थी और उसके पास ऐसा राज था जो पूरी बाजी पलट सकता था। अगली सुबह मीरानपुर की अदालत लोगों से भरी हुई थी। शहर के बड़े ताजिर, आम लोग, सिपाही सब वहां मौजूद थे। हर कोई सुलेमान के फैसले का इंतजार कर रहा था। अदालत के दरमियान सुलेमान खामोश खड़ा था। इसके हाथों की रस्सियां खोल दी गई थीं, मगर इस पर रात भर की थकन साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ फहीम बड़े सुकून से खड़ा था, जैसे इसे पहले ही यकीन हो कि आज सब कुछ इसके हक में होगा। काजी अब्दुल मालिक अपनी मसनद पर बैठे सबको गौर से देख रहे थे। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इस मामले के बारे में कुछ जानता हो? चंद लम्हों तक पूरा कमरा खामोश रहा। फिर अचानक दरवाजे के करीब बैठी वही बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी हो गई। सबकी नजरें इसकी तरफ उठ गईं।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैंने इस रात एक आदमी को सुलेमान के गोदाम के करीब देखा था। ये सुनकर फहीम का रंग बदल गया। औरत ने कांपती हुई उंगली फहीम के मुलाजिम रफीक की तरफ उठाई और कहा, यही शख्स रात के अंधेरे में वहां से निकल रहा था। अदालत में सरगोशियां शुरू हो गईं। रफीक घबरा गया और उधर उधर देखने लगा। काजी ने फौरी सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे सामने लाया जाए। पहले तो वो मुसलसल इनकार करता रहा, मगर जब काजी ने सख्त लहजे में पूछा और सिपाहियों ने इसे डराया तो उसके हौसले टूट गए और वो कांपती आवाज में बोला, मैंने सिर्फ हुक्म माना था। ये पूरा हाल खामोश हो गया। काजी ने गुस्से से पूछा, किसका हुक्म? रफीक ने डरते हुए नजरें उठाईं और सीधा फहीम की तरफ देख दिया। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। लोगों ने हैरत से फहीम को देखा जबकि वो जर्द पड़ गया था। रफीक रोते हुए बोला, सोने की थैली इसने दी थी, शाही महर भी इसी ने गोदाम में रखवाई। वो सुलेमान को बदनाम करना चाहता था। ये सुनते ही पूरे हाल में शोर मच गया। फहीम फौरी चीखा, झूठ, ये सब झूठ है। मगर उसकी आवाज में पहले वाला एतमाद नहीं रहा था। काजी अब्दुल मालिक गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, जो शख्स एक बेगुनाह की इज्जत छीनने की कोशिश करे वो पूरे शहर के एतमाद के काबिल नहीं रहता। सिपाहियों ने फौरी फहीम को पकड़ लिया। बाजार के लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। कुछ देर पहले तक जो शख्स सबके सामने नेक बनता फिरता था, आज इसी की असलियत सबके सामने आ गई था। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सुलेमान ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। सिपाही जब फहीम को पकड़ कर ले जाने लगे तो पूरा हाल गुस्से से भरा हुआ था। लोग चीख रहे थे, इसे सख्त सजा दो, इसने एक नेक इंसान की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की है। फहीम का सर नीचे था, इसकी आंखों से गुरूर गायब हो गया था और पहली बार इसे अपने अंजाम का खौफ महसूस हो रहा था। काजी अब्दुल मालिक ने गुस्से में हुक्म दिया, फहीम की तमाम दुकानें बंद कर दी जाएं और इसे शहर के चौक में इबरत की सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई बेगुनाह के खिलाफ ऐसी साजिश ना करे। इतने में अचानक सुलेमान आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, काजी साहब, एक गुजारिश है। पूरा हाल खामोश हो गया। काजी ने हैरत से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? सुलेमान ने चंद लम्हे फहीम को देखा, फिर धीरे से बोला, अगर आज इसे सजा दे दी गई तो शायद कानून का इंसाफ पूरा हो जाए, मगर उसके दिल का अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लोग हैरान रह गए। हारिस ने बेयकीनी से सुलेमान को देखा, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि इतनी बड़ी साजिश के बाद भी वो ये बात कर सकता है। सुलेमान ने बात जारी रखी, इसने मेरे लिए गड़ा खोदा, मगर अगर मैं भी नफरत में वही बन जाऊं जो ये था, तो फिर मेरे और इसमें फर्क क्या रहेगा? अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। फहीम ने पहली बार नजरें उठाकर सुलेमान को देखा। इसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। सुलेमान ने काजी से कहा, मैं चाहता हूं इसे एक मौका दिया जाए ताकि ये अपनी गलती सुधार सके। काजी अब्दुल मालिक चंद लम्हे खामोश रहे, फिर गहरा सांस लेकर बोले, हर इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता, मगर शायद रहम वो ताकत है जो दिल बदल देती है। उन्होंने फहीम की सजा कम करने का हुक्म दे दिया, मगर साथ ये शर्त रखी कि वो 1 साल तक गरीबों की खिदमत करेगा और बाजार में किसी किस्म का कारोबार नहीं करेगा। ये सुनकर फहीम की आंखों से आंसू निकल आए। वो कांपते हुए कदमों से सुलेमान के करीब आया और अचानक इसके कदमों में गिर गया। रोते हुए बोला, मैं तुम्हें गिराना चाहता था और तुमने मुझे उठा लिया। सुलेमान ने फौरी इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कहा, इंसान की असल ताकत बदला लेने में नहीं, मुआफ करने में होती है। इस दिन के बाद मीरानपुर के लोग सिर्फ सुलेमान की ईमानदारी की सिर्फ मिसाल नहीं देते थे, इसके दिल की वसअत की भी कसम खाते थे। वक्त गुजरता गया, सुलेमान की तिजारत पहले से ज्यादा बढ़ती गई, मगर उसके मिजाज में कभी गुरूर ना आया। वो आज भी गरीबों के घरों में खामोशी से राशन पहुंचाता, यतीम बच्चों की मदद करता और हर नए ताजिर से सिर्फ एक बात कहता, रिस्क कम आ ज्यादा होना अहम नहीं, अहम यह है कि वो पाक हो। जबकि फहीम वाकई बदल गया था। 1 साल बाद जब वो दोबारा बाजार में आया तो इस पर पहले वाला गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। लोग कहते थे, जिस शहर में सुलेमान जैसे लोग हों वहां बरकत खुद रास्ता ढूंढ लेती है।
और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था कि हसद इंसान से सही और गलत की पहचान छीन लेता है और नफरत इसे दूसरों को गिराने पर मजबूर कर देती है। मगर सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। वक्ती तौर पर झूठ कामयाब दिखाई दे सकता है, लेकिन आखिरकार जीत हमेशा अच्छे किरदार, रहम और ईमानदारी की होती है। और इंसान की असल ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, उन्हें मुआफ करने और अपने दिल को साफ रखने में होती है।